Then let us start with practice set 4.4. Again, this is again shares and on share market, capital market. Only thing is the share. This question is a little bit little level is little higher compared to the earlier one, 4.3. Okay, let us start with the question. We'll read the question. Okay, market value of a share is rupees 200 if the brokerage, the market value of the share is rupees 200. If the brokerage rate is 0.3%, then purchase value of the share we have to find. So brokerage, I told you in the earlier lecture that it is applied on a market value. When you go to purchase a share, you buy share on a market value. So brokerage will be levied on the market value. Okay, let us start now. Practice set 4.1, solution 1. I'll divide this into say 3 compartments. Let's say how much space we need. Otherwise, these are not so big solutions. We might be able to complete 3 or 4. Now, market value of the I repeat again the question. Market value of a share is rupees 200. That means we are talking about one share. Okay. If the brokerage rate of brokerage is 0.3%, then purchase value of the share. Let's write down solution. Market value of share is rupees 200. Now rate of brokerage is 0.3%. So find the brokerage now. Okay, brokerage will be brokerage is how rate of brokerage 0.3. So brokerage will be 3% of market value. 0.3% of the market value. Let us see how much market value comes. 0.3 upon 100 into 200. So 0 gets cancelled. You get 3 to the 6. 0.6. So this is rupees 0.6. Sif 60 paise. Okay. Therefore, purchase value या cost price बोल सकते हो. Purchase value of share. Purchase value of share is market value plus brokerage. Market value is 200, brokerage 0.60. So purchase value is rupees 260 paise. So write final answer as we always write. Write down what is the final answer. What they ask, what is the purchase value of the share. So write down, therefore, purchase value of share is rupees 260 paise. हो गया भाई. तो क्वेश्चन नंबर नाउ सॉल्यूशन 2 पे जाते हैं. What is question 2 will read? A share is sold. Share बेचा है. Is sold for the market value of rupees 1000. एक शेयर 1000 रुपए का है. 1000 रुपीज. ओके. ब्रोकरेज इज पेड. ऑफकोर्स हमने मार्केट से खरीदा है तो ब्रोकरेज तो भरना ही पड़ेगा अपने को. तो ब्रोकरेज रेट क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.1%. ओके. व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल? अच्छा, ये हमने पहले क्वेश्चन में शेयर खरीदा था. इस क्वेश्चन में हमने शेयर बेचा है. तो इस क्वेश्चन में क्या था? परचेस वैल्यू वाज मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज. ओके. ये क्या है? सेल वैल्यू. सेल वैल्यू विल बी मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज. बस बाकी सब सेम है. लास्ट का फॉर्मूला याद रखना. चलो सॉल्यूशन करते हैं. देखो मार्केट वैल्यू ऑफ
शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? ₹1000। रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है बच्चों? 0.1 ना, 0.10 नहीं ना, हाँ 0.1, 0.01 नहीं, 0.1%। अभी ब्रोकरेज निकालो क्या होगा? Therefore brokerage is 0.1% of market value। तो ये क्या हुआ? 0.1 अपॉन 100, मार्केट वैल्यू है 1000, तो ये 0 चला गया, 2 0, बचे कितना? ₹1, ₹1 बचा, तो उसको ₹1 पे करना है। सो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ 1 शेयर कितना है? मार्केट वैल्यू। देखो ये क्या था? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। यहां क्या है? क्योंकि ये बेचा है ना, वी आर सेलिंग अ शेयर, सो इट इज मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो ये मार्केट वैल्यू कितनी है? 1000 माइनस ब्रोकरेज 1, सो उसको कितना पैसा मिला? 999। सो लिखना है वापस फाइनल आंसर। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर selling the share is ₹999। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 हो गया, अब सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 उन्होंने टेबल दिया है, तो हम लोग टेबल ड्रॉ, चलो एक काम करते हैं, इरेज करते हैं इसको, ताकि हम प्रॉपरली वो, ये लेंदी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, तो पूरी तरह से हम लोग उसको एकोमोडेट कर पाएंगे अपने बोर्ड के ऊपर। सो नाउ प्लीज ऑल ऑफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ लो बिफोर वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 3। शायद ये बड़ा होगा, तो इसके शायद में 2 टेबल ड्रॉ करना है, इसलिए थोड़ा इसका स्पेस ज्यादा लेते हैं। ओके, हियर नाउ वी गो टू द टेबल। सेवन कॉलम्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं, और अभी रोज ड्रॉ करते हैं, 1 2 और 3। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद है नंबर ऑफ शेयर के बाद क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लिख दिया।
अभी इसकी देखो, एक शेयर की वैल्यू लिख दी है हमने पर शेयर। हाँ, ये मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर। तो टोटल हमें इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी वो लिखना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू लिखने के बाद इसकी टोटल वैल्यू जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। टोटल वैल्यू, वॉल्यूम आ रहा है, यस, टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसकी टोटल वैल्यू के बाद अभी एक ब्रोकरेज लिखते हैं। ब्रोकरेज 2% है। ब्रोकरेज इज 0.2% मेरे ख्याल से। ब्रोकरेज 0.2%। बाद में CGST प्लस CGST आएगा ऑन शेयर मेरे ख्याल से, और ऑन ब्रोकरेज। CGST ऑन ब्रोकरेज और SGST ऑन ब्रोकरेज, और ये टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर। देखो, अब हम लोग यहां जो लिखने वाले हैं, इसमें हमें या तो ये जो है 9% है, ये 9% है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग जनरली, क्योंकि हम लोग, मैं जानता हूँ, आई डू शेयर मार्केटिंग, सो 18% GST लगता है, तो 9% CGST और 9% SGST। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे दिया है उन्होंने, द 100 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड आर 100। ये B का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, ओके, परचेस्ड, और ये 75 शेयर्स है। ये है S का मतलब है 75 शेयर्स सोल्ड। B बॉट, S सोल्ड। अब कितने रेट है इसका? इसका रेट है 45 रुपीज पर शेयर। मतलब 100 शेयर्स परचेज किए हैं एट द रेट, मतलब एक शेयर की कीमत है 45 रुपीज। तो टोटल वैल्यू आपको पता चलेगी 45 इंटू 100। यह आएगा रुपीज, ये रुपी में होगा 4500। अब देखो, मैं अभी एक्चुअली ये सॉल्व कर रहा है, लेकिन मैं इसको ओरली यहां सॉल्व कर देता हूं, एटलीस्ट यहां तक सॉल्व कर देता हूं। ये ब्रोकरेज का हम लोग बाद में पूरा ही सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं ये इजी है इसलिए मैं ओरली कर रहा हूं। ये इसका मतलब हम लोग राइटिंग में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, राइटिंग में भी करेंगे, बिकॉज हमें बताना पड़ेगा एग्जाम में। दूसरा है 75 शेयर्स सोल्ड, उसने बेचा है, और क्या रेट में बेचा है? 200 रुपीज में, 200 रुपए में उन्होंने एक शेयर बेचा है। कितने शेयर्स बेचे हैं? 75। तो टोटल वैल्यू, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? 75 इंटू 200। तो 75 टू जा 150, और 150 के पीछे 2 0 लगा दो, तो ये हो गया आपके 15,000। कितना रुपया? 15,000। ओके, अब ये बाकी का हमें फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। हम जानते हैं नंबर ऑफ शेयर्स bought are 100. Market value of each share is rupees
45। अभी ब्रोकरेज निकालो, ब्रोकरेज पर शेयर निकालो। हाँ अच्छा चलो, टोटल वैल्यू निकालना है तो निकाल दो, उसके बाद ब्रोकरेज पे जाते हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल या टोटल वैल्यू निकालो, उतना काफी है, वो टैक्सेबल वैल्यू ही होगा। टोटल वैल्यू जहां लिखा है उन्होंने वैसे लिखते हैं, विल बी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, 100 इंटू 45, ये ₹4,500 हो गया। ओके, 4,500 रुपीज इज द टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब आते हैं ब्रोकरेज पे। ब्रोकरेज कितना है? ब्रोकरेज है निकालना है, ब्रोकरेज इज 2%, सो इट इज 0.2% ऑफ ये कितना 40 टोटल वैल्यू 4,000 लिखो पहले, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, सो 0.2 अपॉन 100 इंटू 4,500, तो ये गया तो 9 रुपीज आता है, 9 रुपया उसका ब्रोकरेज आता है। सो CGST क्या होगा ऑन 9 रुपीज? देखो CGST इक्वल टू CGST is equal to S state, SGST equal to 9% of total value. So ये आएगा 9 upon 100 into 4,500, 0 हो गया, रुपीज कितना होता है 95। ये ब्रोकरेज है, तो हम लोग ब्रोकरेज पर शेयर निकालेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर। वो बाद में निकालना है ब्रोकरेज पर शेयर। ब्रोकरेज पर शेयर के पहले हमें ब्रोकरेज, ये GST ऑन ब्रोकरेज है। देखो शेयर पे हम जब परचेस करते हैं ना, तो शेयर मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज लगता है, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज खरीदते समय, बेचते समय खरीदते समय मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होगा, बेचते समय मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज होगा। लेकिन मैंने आपको पहले इसमें बताया था, याद रखो पहले वीडियो में इसके 2.3 में, कि GST मतलब जो है वो मतलब CGST एंड SGST वो ब्रोकरेज पे लगता है, ओके, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। सो ये ब्रोकरेज है 9% ऑफ टोटल वैल्यू नहीं, 9% ऑफ ब्रोकरेज। उसकी वजह यह है, ये जो एजेंट है वो डील कर रहा है ना, सो डीलर इज द एजेंट, सो GST इज लेविड बाय एजेंट, सो वो ब्रोकरेज पे लगेगा। ये है ब्रोकरेज उसका एक शेयर के ऊपर, टोटल वैल्यू के ऊपर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर के ऊपर 9, सो 9 9 is 81 upon 100, सो ये रुपीज 0.81 पैसे लगता है। CGST या SGST को वापस लिखते हैं, CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू रुपीज
81 मतलब 81 पैसे। अब परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर क्या होगा, देखो उसने खरीदा है ना, टोटल वैल्यू ये परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू भाई, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने आपको बोला था कि परचेस वैल्यू जब हम खरीदने जा रहे हैं ना, बॉट है ना, तो खरीदने जा रहे हैं तो उसका जो टोटल परचेस वैल्यू है 4500, वो जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर लगने वाला है आपका ब्रोकरेज प्लस होके, और उसके ऊपर प्लस होके आएगा, मतलब 2 प्लस होगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस टैक्स, मतलब CGST एंड SGST दोनों कंबाइन मिला के, मतलब 0.81 प्लस 0.81 याद रखो। तो ये सब ऐड करो और बनेगा उसका परचेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है उसका टोटल वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST। तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या है इसकी 4500 प्लस ब्रोकरेज कितना है टोटल वैल्यू के ऊपर, टोटल वैल्यू पर ब्रोकरेज कितना है ₹9। ये टोटल ब्रोकरेज के ऊपर CSD और SGST कितना है, दोनों मिला के, मतलब दोनों अलग अलग ऑफकोर्स 0.81, तो ये 2 बार, ये आपका सेंट्रल GST टैक्स और ये स्टेट GST टैक्स, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। अब इसको ऐड करो। ओके, तो ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ₹1.62, ₹1.62, ये ₹9 और ये आता है आपका ऐड करके, तो 2.62, तो ₹4510.62 ये उसकी टोटल परचेस वैल्यू है ऑफ ऑल 100 शेयर्स, पूरे 100 शेयर्स। तो ये हमें वहां लिखनी है, ये हमें यहां लिखना है। ब्रोकरेज होगा ₹9, ये जो टैक्स है ये होगा 0.81, ये ₹9, ये है ये भी 0.81, और ये सब ऐड करके ये आएगा ₹4510.62। अब ये फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है ये उन्होंने दिया हुआ है वो लेते हैं। अब ये है सोल्ड, उन्होंने शेयर्स को बेचा है, खरीदा नहीं है। अब बाकी तो सेम आएगा, यहां तक सेम आएगा, लेकिन ये जो है ना ये बदलेगा, ये सेल वैल्यू ऑफ शेयर होगा, इट विल बी टोटल मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसने बेचा, ये ब्रोकरेज माइनस होगा, और GST मतलब CGST और SGST दोनों आपस इसमें से माइनस होंगे। ओके, यही फॉर्मूला का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो स्टार्ट करो। नंबर ऑफ शेयर्स, देखो यहां कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड 75। रेट क्या है, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है, ₹200। ओके, देयरफॉर टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू, सेलिंग वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, number of shares into rate into market value of each, into market value of each, हर एक के मार्केट वैल्यू ऑफ निकालो। तो ये होगा आपका 75 इंटू 200, हमने पहले ही निकाल लिया है 15
हमने ये यहां तक तो निकाल लिया है। ओके, अब ब्रोकरेज निकालेंगे, ब्रोकरेज ऑन टोटल वैल्यू, तो ब्रोकरेज निकालो। ब्रोकरेज इज 0.2 ओनली, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ये है 15,000। सो ब्रोकरेज कितना आएगा, 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000, 0 गया 30 रुपीज। ब्रोकरेज होगा, ब्रोकरेज टोटल ब्रोकरेज इज ₹30। टोटल सब मतलब हाँ 75 शेयर्स लिए हैं 200 रुपए में, तो सब 75 शेयर्स का एक ही डील हुआ ना, एक पैकेज डील है, तो वो पैकेज डील का ब्रोकरेज जो है वो है आपका ₹30। अब आते हैं हम लोग, ये यहां तक हो गया। अभी CGST और SGST 9% पर निकालना है। CGST is equal to SGST is what, 9% of brokerage. So 9 upon 100 brokerage कितना है, 30 रुपीज। 9 3s are 27 divided by 10, तो ये होगा कितना रुपया, 2 रुपीज 70 पैसे। 2 रुपीज 70 पैसे is your CGST equal to SGS। हो गया। अब आते हैं यहां क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल सेल प्राइस या टोटल अमाउंट he paid to buy. Okay, total amount he paid to buy shares. Therefore, total amount spent, अच्छा वर्ड रहेगा, spent to buy कितना है ये, 75 शेयर्स। 75 शेयर्स ये कितना होगा भाई, ये होगा आपका टोटल मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस CGST माइनस SGST, सबको माइनस करना है। तो ये है 15,000 माइनस टोटल ब्रोकरेज कितना है, ये 30 रुपीज, और ये है आपका CGST 2 रुपीज 70 पैसे, SGST 2 रुपीज 70 पैसे। तो मैं 15,000 रखता हूँ और इसको ऑल नेगेटिव साइंस बाहर लेता हूँ, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो 2.70 प्लस 2.70, तो ये होगा 15,000 माइनस ये है 2.7 प्लस 2.7 इज 5.4, तो 35 रुपीज 40 पैसे 30 में ऐड करने के बाद, तो इसको माइनस करना है आपको हमें। तो चलो हम माइनस करके देखते हैं। ये 15,000 है 0.00, उसमें से 35,000 40 पैसे को माइनस करते हैं, तो ये 0 का 10 माइनस 4 6 आता है, ये 9 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये भी 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 3 इज 6, ये 9 आता है, और क्योंकि ये 9 होता है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 और ये 1, तो ये इसका आंसर आएगा ₹14,964.60। इतना पैसा उसको मिलेगा, ही विल गेट आफ्टर सेलिंग 75 शेयर्स। अब ये हमें वो ब्रैकेट में और ये फिर ब्लैंक में लिखना है।
तो ये ब्रोकरेज यहां तक तो हमने लिख लिया, देखो यहां तक तो हमने लिख लिया है। अब ब्रोकरेज कितना है, ₹30। CGST और SGST कितना है, ₹2.70, ये ₹2.70, और ये अमाउंट कितना है, टोटल वैल्यू मिलेगा उसको 14964.60। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। ध्यान से देखो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 4। अलजेब्रा इज वेरी इजी, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर पूरे बरस में फुल ईयर यू गेट 10 months बिफोर योर अगर ऑफकोर्स यू स्टार्ट विथ अगर हम लोगों ने आफ्टर योर रिजल्ट यू गेट 10 months, जून से स्टार्ट करेंगे तो 10 month मिलेंगे। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट 9th में तो मैं पास हो गया हूँ, सेमेस्टर तक अपने एवरेज खत्म हो चुका है और सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी बची हैं, तो यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम द वर्ड गो, दैट इज फ्रॉम अप्रैल इटसेल्फ। देन यू गेट फुल 12 months। तो 12 months में एटलीस्ट देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो शायद मैक्सिमम 3 बार आप देख लोगे तो भी काफी हो जाएगा पूरे ईयर में। लेकिन प्रैक्टिस आपको ये वीडियो के सामने बैठ के नहीं करना है। एक बार वीडियो पे सामने बैठो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद 3-4 बार और प्रैक्टिस खुद करो। तो यू शुड एबल टू डू अ कंप्लीट टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 6 times। थोड़ा ज़्यादा हो सके तो जितना मिनिमम 6 times होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब मिनिमम कम से कम 6 बार टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप 6 से ज़्यादा कर पाते हो, देखो 4 बार तो हो ही जाएगी, क्योंकि यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, उसके बाद सेकेंड यूनिट टेस्ट, फर्स्ट प्रीलिम एंड सेकेंड प्रीलिम, तो 5 और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वैसे ही 6 बार हो जाता है। लेकिन वो मुझे आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इन बिटवीन आप अगर बीच में भी और 3-4 बार कर लेते हो, मतलब से अबाउट 10 विल बी द बेस्ट। लेकिन अगर 8 बार भी है प्रैक्टिस ईमानदारी से, आराम के साथ, नॉट बिफोर एग्जाम, वेल इन बिफोर एग्जाम, अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो, 8 बार पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, I think no one can stop you getting 85% above in algebra, ये सब्जेक्ट में algebra में। ओके, तो ईमानदारी से प्रैक्टिस करो और बहुत इजी चैप्टर्स हैं। अगर भगवान ने चाहा तो 90 के ऊपर आराम के साथ मिलेगा, 90-95। आजकल इतना टफ नहीं होता पेपर। और ओनली थिंग इज लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर ये 5-6 बार 10 बार 8 बार प्रैक्टिस हुआ तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। अभी ये मिसेस देसाई ने शेयर्स बेचे हैं, उसकी फेस वैल्यू है ₹100। व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50, जब उसकी मार्केट वैल्यू ₹50 की थी। ओके, एंड रिसीव्ड, और इसको कितना पैसा मिला? शी गॉट समथिंग 4,988.20 पैसे। शी उससे कितना ब्रोकरेज भरा है? हाउ मच ब्रोकरेज शी पेड? 0.2% brokerage and GST. And what was the GST? That means CGST and SGST together was 18%, मतलब 9% CGST and 9% SGST जो अभी हमने किया। Then how many shares? कितने शेयर्स उसने बेचे हैं वो हमें निकालना है। How many shares she sold?
चालू करते हैं। सपोज अभी देखो, वी डोंट नो थोड़ा, वी डोंट नो, मैं थोड़ा ये फंक्शन है बाजू में तो आवाज आता है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आज राम क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा है तो क्रैकर्स आर, इसलिए थोड़ा रुका, आई वेटेड फॉर सम टाइम दिस टाइम। उसी दिन मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ उस मुहूर्त के ऊपर ही। लेट्स स्टार्ट। यू नो नंबर ऑफ शेयर्स, हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो मालूम नहीं है कितने का, तो हम लोग एक शेयर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखेंगे वैल्यू, क्योंकि क्या होगा, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हम लोग करेंगे तो अपने को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। तो हमें मार्केट वैल्यू जो उसको एक्चुअली मार्केट वैल्यू नहीं, एक्चुअली हाउ मच इन ऑल शी स्पेंड, मतलब इंक्लूडिंग मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, क्योंकि उसने बेचा है ना, माइनस ब्रोकरेज, माइनस CGST एंड SGST, माइनस उसके बाद जो प्राइस आती है उसको जो मिली है बेचने के बाद, वो प्राइस हमें निकालनी है। बिकॉज टोटल अमाउंट शी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग वन शेयर, दैट विल गिव टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो चालू करते हैं। सपोज एज्यूम करो श्रीमती, नाम क्या उसका, श्रीमती देसाई। सपोज श्रीमती देसाई सोल्ड वन शेयर, एक शेयर के बारे में देखते हैं। सपोज शी सोल्ड वन शेयर, सो व्हाट इज द ब्रोकरेज? ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, एक शेयर का उसका ब्रोकरेज कितना होता है, ये है पहले हमें निकालना पड़ेगा। कितना दिया ब्रोकरेज? 0.2। अच्छा, 0.2% ऑफ उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो है एक्चुअली ये उसको डिस्काउंटेड मिला है। यू ऑल्सो डिस्काउंटेड बिकॉज फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 50 है, तो मतलब वो डिस्काउंट है, 50 रुपीज डिस्काउंट में उसको मिला है। नहीं, एट प्रेजेंट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और कुछ। 0.2/100 इंटू 50, तो ये 0 आपका ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल, ये 10 होगा और ये अपॉन 100, तो ये होगा रुपी 0, ये 0 गया 0.1। एक शेयर के ऊपर उसको 0.1 रुपी, मतलब 10 पैसा, मतलब 0.1 रुपी ब्रोकरेज देना है। ओके, सो अभी उसके ऊपर, ये इसके ऊपर उसको SGST और CGST कितना देना है, ये ब्रोकरेज के ऊपर ना। CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू half of GST. So it is 1/2 into 18. So it will be 9% each. 9% काफी हो जाएगा। So CGST भी 9% और SGST भी 9%. Okay. डायरेक्ट निकालेंगे GST तो भी चलेगा। Why we have to go for डायरेक्ट GST देते हैं सीधा, क्योंकि हमें टेबल तो बनाना नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ टेबल, ज़्यादा डायरेक्टली करते हैं। रेट ऑफ GST इज 18%, therefore GST इक्वल टू 18% ऑफ ब्रोकरेज। ये GST ऑन वन शेयर है, GST ऑन वन शेयर, GST on one share. So ये 18/100 और उसका ब्रोकरेज ये है 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आता है ये 1.8/100.
So this will be 0.018 rupees. ये उसका आता है ब्रोकरेज, सॉरी ये उसका आता है जीएसटी एक शेयर के ऊपर. अभी हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस. देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर, एक शेयर कितने में उसको उसने बेचा, मतलब ओके. या हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस से अच्छा हम कहेंगे तो सेलिंग प्राइस का तो वो हमें रिसीव अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग वन शेयर. अच्छा ये सेल किया है ना, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग वन शेयर, सेलिंग प्राइस से अच्छा अमाउंट received by selling one share. तो ये होगा उसकी मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 50 रुपीज, याद रखो, माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी. तो मार्केट वैल्यू है 50 माइनस ब्रोकरेज है 0.1, बराबर है, माइनस ये आएगा 0.018. तो ये आएगा 50 रुपीज माइनस 0.118. इन दोनों को मैंने ऐड किया, माइनस माइनस ऐड हो जाता है. सो दिस विल बी, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये आता है 50.000. यह आएगा 0.118. सो 10 माइनस ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. सो 9 माइनस 1 ये 8, सॉरी 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 1 इज 8, 9 माइनस 1 इज 8 पॉइंट, ये 49 रुपीज 49.882 उसको मिलता है. इसको हमें मिलता है रुपीज 49.882. This is the amount she will receive by selling one share. So अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, बहुत आसान है. टोटल वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स, therefore number of shares sold will be उसके टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू रिसीव्ड upon amount received by selling, या selling price of one value, or amount received by selling one share, या selling price लिख सकते हो. टोटल वैल्यू कितनी है भाई उसकी, उन्हें दिया है क्वेश्चन में 4988.20, 4988.20, और ये है 49882, 49.882. ध्यान से देखो, नीचे 3 आफ्टर डेसिमल पॉइंट या 3 डिजिट, ऊपर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट. तो नीचे 3 डिजिट्स हैं, तो जिस ज्यादा डिजिट्स है उससे हम लोग कितने डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद ज्यादा, नीचे वाले के पास कितने हैं, वो 3 डिजिट्स हैं. तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 करो. सो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000, ये डेसिमल पॉइंट. टू रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट. तो ये क्या होगा भाई, ये होगा 498820 और ये होगा 49882. ध्यान से देखो क्या होगा, ये होगा 100 डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आएगा 100. सो श्रीमती देसाई सोल्ड हाउ मेनी शेयर्स, 100 शेयर्स. आंसर है इसका, देयरफॉर श्रीमती देसाई सोल्ड 100 shares. तो प्रैक्टिस सेट 4.4 का 5th क्वेश्चन लेते हैं. मिस्टर डिसोजा परचेज 200 शेयर्स. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं.
मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स फॉर फेस वैल्यू ऑफ 50, तो इसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है। ये हमें मार्केट वैल्यू और डिविडेंड कैलकुलेट करने में काम आएगी। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी होगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो ये जो 200 शेयर्स लिए हैं उसका एक शेयर की वैल्यू है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब 50 प्लस 100 150। उसके बाद उसने वो 100 शेयर्स के ऊपर 200 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव किया। तो एक शेयर का फेस, अच्छा डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो 50 रुपीज अगर फेस वैल्यू तो डिविडेंड 50% निकालो, उसको एक शेयर का डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो विथ 2200, उसको 200 शेयर्स के डिविडेंड मिल जाएंगे, टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। बाद में उसने जो 200 शेयर्स है उसके दो ग्रुप किए हैं, एक 10 रुपीज डिस्काउंट में बेचा है 100 शेयर्स, और दूसरे 100 शेयर्स उसने 75 रुपीज प्रीमियम में बेचा है। और याद रखो उसने खरीदते समय 20 रुपया ब्रोकरेज दिया है, ओनली 20 रुपया, परसेंटेज नहीं है, 20 रुपया सीधा। और ये जो दो ट्रांजैक्शन है उसमें भी खरीदते समय उसमें 20 रुपये दिया है। इसका मतलब जब खरीदते समय 20 रुपया दिया था तो उसको जो प्राइस होगी 150 इंटू 200, तो 30,000 रुपये आएगी, उसमें 20,000 रुपये ऐड करो तो 30,020 रुपये उसने इन्वेस्टमेंट उसकी। उसके बाद डिविडेंड निकालो ऑन 200 शेयर्स, उसमें पहले 1 शेयर्स पे निकालो, बाद में मल्टीप्लाई करके 200 शेयर्स पे आएगा टोटल डिविडेंड। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर निकालना है, बाद में सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स निकालो। उसके बाद उसमें 20 रुपीज सब ट्रैक करो। सेलिंग उसने बेचा है ना तो उसको कम आएगा ब्रोकरेज, देखिए पेमेंट कम आएगा। और बाद में 100 का डिविडेंड रुपी है, 175 रुपीज डिविडेंड में उसने बाकी के 100 शेयर्स बेचे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू निकाल, सॉरी उसकी सेलिंग प्राइस निकालो, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इंटू 100 जो भी वैल्यू आएगी उसकी टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स आएगी ऑन प्रीमियम। उस पे भी उसको माइनस 20 रुपीज करना है। उसके बाद ये डिविडेंड, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 100 शेयर्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट 100 शेयर्स सब ऐड करो, ये उसका रिटर्न होगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या रिटर्न ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न लेस है तो उसका लॉस होगा। और तो ये लॉस यहाँ लॉस ही होने वाला है। और बाद में एक्चुअल लॉस निकालो, दैट विल बी टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल रिटर्न्स, आपको लॉस मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्से में और चालू करते हैं। 2 हिस्सा काफी हो जाएगा, 3 हिस्से में करते हैं। अगर कान से ना बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। चलो सॉल्यूशन, पहले हम लोग उसका फेस वैल्यू लिखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹50, उसका प्रीमियम है of is ₹100. So what will be market value? Therefore, market value MV equal to face value plus premium. तो ये कितना होगा? 50 plus 100 ₹150, ये होगी उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब हमें फाइंड करना है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट ऑफ is number of shares into MV। तो ये 200 शेयर्स into 150 तो आता है रुपीज 15 to the 30 और ये 30,000 उसका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज 30, तो उसका लेकिन ब्रोकरेज है ना, उसको दिया है brokerage paid is ₹20।
देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना उसका हुआ, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ रुपीज, इनको ऐड करो 30,020, इसको हाईलाइट कर दो भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट। अभी हमें फाइंड करना है डिविडेंड, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड इज 50%, ओके, और ये फेस वैल्यू के ऊपर होता है, सो डिविडेंड इज 50% ऑफ फेस वैल्यू, सो इट इज 50 अपॉन 100 into 100 is rupees 50 रुपीज, उसका एक शेयर का डिविडेंड है, नहीं 50 रुपीज है भाई, 50 रुपीज है ना, तो 0 गया उसका 25 रुपीज, 25 उसका वन शेयर का डिविडेंड है, तो टोटल डिविडेंड कितना होगा, टोटल डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ₹25, तो यह आएगा उसका नंबर ऑफ शेयर्स 200 इंटू ₹20, therefore टोटल डिविडेंड उसका होगा ₹25 टू द 50 और 2 0 है तो 5,000, इसको भी हाईलाइट करो। अब आते हैं उसके जो सेलिंग पर, ही सोल्ड ना, ही सोल्ड कितना 100 शेयर्स, he sold 100 shares at discount of ₹10, उसने 10 रुपए के डिस्काउंट में बेचा है, याद रखो, therefore selling price of one share, selling price of one share कितना हो, selling price of 100 shares ले दो सीधा डायरेक्टली, selling price of 100 shares equal to number of shares थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, घाई कर रहे हैं हम लोग, एक और लिखते हैं, therefore मार्केट वैल्यू कितना होगा, इसका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो लिखो फेस वैल्यू 50 है माइनस डिस्काउंट 10, तो इसकी मार्केट वैल्यू होगी ₹40, therefore सेलिंग प्राइस ऑफ, या अमाउंट, सेलिंग प्राइस या अमाउंट जिस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 shares at ₹40 at the rate ₹40, तो ये होगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ₹40, तो ये होगा 100 इंटू ₹40, तो ये होगा ₹4000। ब्रोकरेज बोलो मत, ये है ₹20, therefore amount received by selling 100 shares at ₹10 discount कितना होगा, 4,000 minus 20, this will be ₹3,980,
भूलो मत ना, ही सोल्ड रिमेनिंग अमाउंट, याद रखो, रिमेनिंग शेयर सोल्ड, ही सोल्ड remaining shares, remaining 100 shares at premium of ₹75. तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी भाई? मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू प्लस प्री MIUM. तो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई एक शेयर की ₹50 प्लस 75. Therefore, MV is equal to ₹120, 125 रुपया उसका मार्केट वैल्यू. Therefore, selling price of 100 shares कितना होगा? ये नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 125. तो ये 100 इंटू 125 हो गया ₹12,500. ओके, अभी अमाउंट कितना रिसीव हुआ उसको ब्रोकरेज भूलो मत. यस, पेड अ ब्रोकरेज. सो ब्रोकरेज इज ₹20. Therefore, amount received by selling next 100 shares at premium is number of shares. ये होगा 12,500 minus 20. तो रुपीज होगा 12,480. 12,480. अभी टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या होगा? अभी ध्यान से देखो, उसके 3 मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है. 3 वैल्यूज हमने हाईलाइट की है. उसको डिविडेंड मिला है, उसको सेल करने के बाद पहले 100 शेयर्स इतना अमाउंट मिला है और दूसरे 100 शेयर्स मिलने के बाद इतना अमाउंट मिला. तो ये उसके रिटर्न्स है 3. तो देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 200 शेयर्स प्लस डिविडेंड कितना होगा? ये है ₹5,000 प्लस 3,980 प्लस 12,480. ऐड करो इसको और देखो कितना आता है. 0 0 0 A 0 0 0 3 0 0 8 8 16. थर्ड टर्म 0 9 9 plus 1 10 plus 1 14 plus 1. Fourth term 5 8 9 10 11 1 2 plus 1 1 plus 1 2. ये उसकी अमाउंट उसको मिला है. दिस इज हिज रिटर्न. देखो, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है और ये उसके रिटर्न्स है. कौन सा ज्यादा है? ये. तो उसने 100% लॉस ही हुआ उसको. सो द सिंस अमाउंट रिसीव्ड is less than amount invested, he suffered loss. Therefore, loss कितना है? Investment
30,020 माइनस 21,460। तो ये लॉस कितना आता है? देखो ये लॉस आता है 0 माइनस 0 इज 0, 12 माइनस 6 इज 6, ये 9 हो जाएगा। सो 9 माइनस 4 इज 5, वापस ये 9 होगा, 9 माइनस 1 इज 8, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज 0, तो ये हो गया उसका लॉस 8,560, और ये आपका आंसर है। ये और